बहुत सारे ऐसे डे केयर थे जहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे बंद थे। इनको क्या फ़ायदा है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को रखने में? RWAs are tying up with some boardings. आप डॉग्स उठवा लो, हम आपको मंथली इतना पैसा देंगे. मैं देखा कंडीशन वाज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। हाय रचिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये पॉडकास्ट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। रिसेंटली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, वहाँ उन्होंने बताया दैट दिस मार्केट इज़ ग्रोइंग रैपिडली। तो वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम योर जर्नी कि कैसे आपने सेटअप करा एंड हाउ यू पिवटेड इनटू दिस मार्केट एंड एक्चुअल में इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। Pleasure is all mine. Thank you for calling me. रचिता, आई वॉन्ट टू नो कि यू आर द फाउंडर ऑफ पूछ किंग। व्हाट इज पूछ किंग? So Puchkin actually emerged from a personal space, I would say. After years of fostering dogs at home, I wanted to create a space where I could offer a space to abandoned dogs specifically. Of course, I wanted to venture into business, but when you are a rescuer for life. करेक्ट। And you can't become a businesswoman if you are a rescuer. I have realized this. Pooch, of course, you know, it's a dog, and kins comes from the suffix, you know, family. So I consider dogs as my family. Nice. So that's how the name emerged. So what is this daycare? मतलब I have never heard about daycare business. So what is this dog daycare business? This business has become more evolved now, I would say, because of everybody is into 9 to 5 jobs, but still want to have a pet. So what they do is, and the pets can't stay alone all day. So most of them, what they do is they keep their pets at a daycare. Just like you keep your kids in a daycare. Correct. So where your dogs can, you know, socialize with other dogs, have a picnic kind of a thing during the day. Oh, nice. And in the evening, I have dogs who come during the day, live the whole day with us, and then in the evening they do tata bye bye to us, and then they leave with their parents. So, or if you're going for a vacation, a long vacation, and you want to, there are places where you can't take your pets. You know, even today there are places in India where you can't travel with your pets. Although we are still, you know, evolving, like I said, and there are places that are, you know, coming up where you can travel with your pet, but still we are But still. Rajita, so I was doing a survey and I realized कि नोएडा में we have multiple daycare centers now. Right. So is this a profitable business? Because I think काफी सारा operationally heavy business है ये. If you're talking about me, I would say till now it's not profitable. Again, I would repeat, it's that I am a rescuer. So for me, rescuing becomes a priority. I don't see it as a business. Correct. While I did open it as a business, but for me, if somebody in the middle of the night calls me that somebody has left a German Shepherd or a Lab or a Golden Retriever and he needs a space, he has nowhere to go, I just tell them, bring her. You know, I don't think about it कि business है, नहीं. what will happen, who's going to take care of them, पैसा कहाँ से आएगा. I just believe in God, and I feel that if He's shown them the way to Puchkins, He is going to show them the way to adopters as well. So adopter से I need to ask you that is कि क्या लोग actual में adopt करते हैं ऐसे dogs को? See, Because that is a full grown dog. I know. So this is where we need awareness. Our society is still, you know, we all of us want cute puppies at home. Very rarely people come up saying that we want an adult dog. However, you know, having an adult dog is a blessing. You know, he's trained. You don't have to go through the puppy phase where, you know, he's chewing onto stuff at your home. Correct. Or you know, peeing around in the house. So if you're looking for a dog who's well trained, go for an adult dog. If you're a first time pet parent, so that awareness is very important. They are as loving and loyal, and they need second chance, and they will heal along with you, and you don't know what they will heal inside you because they are coming broken. Correct.
So it's very important that you बट लोग adopt. आते हैं. नहीं आते, सबको पपीज चाहिए. इतने बच्चे adult dogs, और when I say adult, 1 year old. Okay, so people are not interested for 1 year dog also. No. 1 year old. I have 1 year old dogs who say नहीं तो बड़ा हो गया है. बड़ा तो वो 6 महीने में हो जाएगा. 6 months में he's going to be a full grown dog. Puppy phase will phase out. Correct. What will you do then? You'll get another puppy. No. So that is where the awareness is important. इंडिया में हमें क्या डॉग जो हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, जैसे वी बाय जर्मन शेपर्ड ब्रीड्स, तो क्या इंडिया में ये लीगल है? There are rules, there are laws, ओके. but there is a lot of backbreeding. बैड ब्रीडिंग. Backbreeding. व्हाट इज बैड? Backbreeders. Backbreeders, sorry. Backbreeders are breeders who are not licensed. ओके. वो घर में डॉग्स भर लिए हैं और केजेस में भर के उनको ज़बरदस्ती ब्रीडिंग करके उनको इन ब्रीडिंग करा रहे हैं. फॉर एग्जांपल सेम लिटर से ब्रीडिंग करा रहे हैं, सेम Okay. लिटर में ब्रीडिंग करा रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं. दे आर बॉर्न विद लॉट ऑफ डिजीजेस एंड ऑल. ओके. और वो सस्ते में बेच रहे हैं. कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं. लोग एक हस्की जो आपको 45-40 हज़ार में मिलता है वो आपको 10,000 में मिल रहा है. Correct, आपने खरीद मिलता है. लिया. हाँ. हस्की मिल गया मुझे 10,000 में, खुश हैं आप. अच्छा, लोग लाने से पहले ये रिसर्च नहीं करते कि ब्रीड की नीड क्या है. आप हस्की, रॉटवाइलर, पिटबुल, लोग ब्रीड्स को ब्लेम करते हैं पर डोंट अंडरस्टैंड दैट ब्रीड्स आर नॉट द प्रॉब्लम. वो ब्रीड्स आर वर्किंग ब्रीड्स. आप उनको उस टाइप की एक्सरसाइज दे पाओगे घर में? आप नहीं दे पाओगे तो मत लाओ. छोटे डॉग्स लाओ ना जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है. German Shepherds, Pit Bulls, they need lots of exercise, not just 2 walks. They need running, rigorous running. मैंने देखा है आजकल सोसाइटीज में पीपल कीप जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर्स एंड देन दे हैव अ प्रॉब्लम कि स्पेस कम पड़ रहा है एंड दे लीव दैट डॉग्स. Yeah, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. that is what is happening because dogs frustrate होते हैं जब उनको उतनी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी. तो जब वो एकदम से बाहर निकलते हैं with high energy, they end up biting other dogs. रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग है ही नहीं. पेट पेरेंटिंग जिसे आप बोलते हो. तो सपोज इफ समबडी इज गोइंग एंड अडॉप्टिंग अ डॉग, तो उसको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए पहले? आप सबसे पहले देखो कि आपका लाइफस्टाइल क्या है. ठीक है. आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ब्रीड डॉग जो भी आपको लाना है वो लाइए. कि आप कैसे रहते हो, फैमिली में कौन कौन है और कितना बड़ा घर है आपका, आप क्या दैट यू हैव अफोर्ड टू. कर सकते हो, किस तरह का फूड अफोर्ड कर सकते हो, किस तरह की एक्सरसाइज उसको अफोर्ड कर सकते हो, कितना टाइम उसको दे पाओगे. बहुत सी ब्रीड्स बहुत डिमांडिंग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अ हस्की, वेरी डिमांडिंग डॉग. डिमांडिंग इन द सेंस? दे नीड लॉट ऑफ लव. ओके. वो बहुत आपसे बातें करना चाहेंगे, आपसे चिपकना चाहेंगे. वो ये नहीं है कि आपने उनको छोड़ दिया और अलग बैठे हुए हैं. नहीं, अच्छा. लैब्स की तरह नहीं है वो. लैब्स भी कड़ली होते हैं बट लैब्स आर ऑन देयर ओन कि अपना आराम से बैठ गए कॉर्नर में, चिल आउट हैं. हस्कीज आर डिमांडिंग, वो आपके सर पे आके खड़े हो जाएगा. सो एवरी ब्रीड इज डिफरेंट. करेक्ट. सो वी हैव टू डू अ बेसिक रिसर्च कि हम वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा लाइफस्टाइल कैसा है उसके हिसाब से वी शुड गो फॉरवर्ड विद अडॉप्टिंग अ पेट. एब्सोल्युटली. एंड सो इफ आई एम अडॉप्टिंग अ पेट, तो उस पर हमारे और एक्सपेंसेस क्या आते हैं? सपोज जैसे इट इज़ नेसेसरी फॉर गोइंग फॉर अ ब्रांडेड फूड फॉर योर डॉग. जैसे पहले मेरे घर में क्या था दैट माई मदर यूज टू गिव देम जो हम खाते हैं, हम वही खाना देते थे, वही बेसिक मेडिसिन देते थे. राइट. अब नाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग. मैंने देखा है कि बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स आ गए हैं, ग्लूटेन फ्री फूड, मेनी बिस्किट्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई पेट फूड इंडस्ट्री में. दिस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. आई हैव सीन ऑलमोस्ट 17% ईयर ऑन ईयर Right. ये मार्केट ग्रो कर रहा है. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक बाइंग, लाइक कीपिंग अ पेट इज एक्सपेंसिव नाउडेज? I don't think so because it's a market. Just the way there's a market for humans, there's a market for dogs now. हर dog का अलग need होता है. Every dog is not gluten allergic, just like every human is not gluten allergic. Correct. So आप इंडीज़ को और या और किसी को आप रोटी डाल दोगे तो क्या वो ग्लूटेन एलर्जिक होता है? कितना रोटी दूध कितना दिया जाता है गांव वगैरह में. आप कहाँ ग्लूटेन, आप उनको बोलने नहीं. जाओगे कि वो आप अरे तुमने रोटी क्यों दे दी, अरे तुमने, वो अपने घर में अपने लोगों को रोटी डाल दें बहुत बड़ी बात है. आप उनको सजेस्ट करोगे अरे तुमने रोटी क्यों डाल दी, एक तो वो रोटी डाल रहा है, उस पे से आप उसको सिखाने जाओगे कि अरे तुमने दूध क्यों दे दिया, रोटी क्यों दे दी.
सबका अलग अलग, हर डॉग का अलग नीड है. देयर आर डॉग्स जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी ग्रेन्स से, पर वो अगेन इट्स स्पेसिफिक. स्पेसिफिक, नॉट हाँ. फॉर द जनरल सब डॉग्स के जनरल लिए सबके लिए नहीं नहीं है. है. करेक्ट. मेरे डॉग्स घर पे, आई हैव हैड डॉग्स फॉर नाउ 12 years, और वो घर के खाने पे हैं. सारे घर के खाने पे. सब घर के खाने पे हैं. दे ईट राइस, कर्ड, वेजीज एंड इसी पे हैं. और ऑफ कोर्स चिकन इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, ऐसा बोला जाता है. एग्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम. प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है डॉग्स के लिए, प्रोटीन देना ज़रूरी है उनको, इसलिए हम, आई एम अ वेजिटेरियन माई सेल्फ, बट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए उनको हम देते हैं. तो उनकी डाइट के लिए जो ज़रूरी है वो आप दीजिए. बाकी बेसिक ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मार्केट है, ये मार्केट क्रिएट किया गया है. नहीं, मैं अभी एक सर्वे कर रहा था तो मैंने देखा कि पेट में ना मेडिकल एक्सपेंसेस अब बहुत बढ़ गए हैं. पहले मुझे याद है जब हम पेट के पास, वेटनरी के पास जाते थे, इट वाज लाइक 500-600 रुपये में हमारा नॉर्मली टेस्ट, नॉट टेस्ट, बेसिक मेडिसिन हो जाती थी. अब नाउ इट इज़ गॉन टू 1000-1200-1000. इसीलिए बढ़ गया है. आप बाहर की चीज़ें देना बंद कर दीजिए. ओके. घर का खाना इज़ द बेस्ट खाना. Okay. Be it for humans, be it for animals. There's nothing better than home cooked food. Even a khichdi is good for them. For pets. Yes. And so Rajita, आपने जैसे बताया, ठीक है, you are a very emotional person and you have that incline towards taking care of the pets. But एक business side भी है, and हमारी audience में बहुत सारे ऐसे हैं जो अब इस market में घुसना चाहते हैं. They wanted to start something into pet industry. So मैंने एक research करा है and let me know कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं. So we have 6 things. One is veterinary, second is pathology, आजकल blood test वगैरह बहुत हो रहे हैं. Third is डे केयर, ग्रूमिंग सर्विसेज, डॉग वॉक वाले बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं मार्केट में. एंड वी हैव कंपनीज हु आर गिविंग दैट क्रिमेशन सर्विसेज ऑल्सो. मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर करा है दैट वो भी एक पूरा एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपको क्रिमिनेट करने का पूरा सर्विस देते हैं. तो व्हाट एंड पेट फूड इंडस्ट्री, the fastest growing industry. तो आपको लगता है इसमें से कौन सा ऐसा मार्केट है जहाँ people can get into and they can make a good business if they want to? See, I think if you really want to get into this business, you become the one-stop shop for it. Okay. Because just getting into daycare will not help you. Okay. That's my personal experience. You will have to get into pet supplies as well. You will Pet have supply in the pet sense? supplies as in आप biscuits भी sell करें, Okay. pet food भी sell करें. Got it. Then there are, you must have heard about it, or I'm not sure, there are animal communicators as well. There's this another spiritual business that is growing where there are these people who talk to animals. Okay, no, I'm not aware about it. So there is this another business that has grown a lot in the last few years where if your pet has passed away, there are these people who talk to your pets who have passed away, Okay. and they charge you really high for that. Like people are taking these services? Yes. Okay. Yes. मुझे You are नहीं so idea था. emotionally connected to your pet. You really want to reach out to them when you've lost them. I did that Okay. when I lost my pet. Then there are chiropractors. Okay. Yeah, that's a service. Hydrotherapy is growing right now. What is hydrotherapy? Hydrotherapy is when your pet is paralyzed or is not able to move. Then there's a hydrotherapy where you inside the pool, you give them this therapy through water. Okay. Where he's able to move his legs. Exercise. Exercise. Correct. Yes. So These all that is services. growing. Holistic healing, alternative medicine is growing. So There are multiple it's a huge which market. industry. Yes. So what is one mantra you will be giving somebody starting with? Because आपने करा, you started with take care, and so you are saying that it is a profitable business, but you are very emotional and you are like too much into कि नहीं, you have to take care. That is so. But if somebody is into कि मुझे business बनाना है इसमें, तो क्या एक मंत्र दोगे आप? मेरा ये मानना है कि आप एथिक्स के साथ बिजनेस करना, क्योंकि when I say डे केयर, आप डे केयर जब आप खोलो ना तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है पेट पेरेंट्स के लिए. जब मैं एज अ पेट पेरेंट अपने बच्चे को कहीं छोड़ूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पेट कैसे रखा जा रहा है. Correct. एंड व्हेन आई से दैट, I 100% believe in that and I 100% offer that.
And while I have very few clients today, because I have not marketed myself the way I should have, but my clients are repeated clients because they are able to see their dogs, their pets 24/7 through cameras. Okay, so you have these services की Yes. अच्छा वन थिंग आई वांटेड टू नो आपका जब मैं प्रोफाइल देख रहा था रचिता तो इट वाज मेंशन लग्जरी डे केयर व्हाट इज दैट लग्जरी डे केयर मीन When you go to for a vacation as humans, what is luxury for us? You have a neat and clean hotel. करेक्ट You know, आप जो बोलो आपको मिल जाए खाने को, on call, everything. वही तो luxury है, right? How do you explain luxury otherwise? That is luxury for you. So same is with pets. When I say luxury, it is luxury in terms of cleanliness. There you will not see even a spat, even a drop of pee in my body, even for a minute. Like even by mistake, if a pet pees, it is cleaned there and then. It is not left even for a minute. And that's the kind of cleanliness I want to maintain for life if I have to run this. Because I want to live there. For me, that is luxury. दैट इज सेकंड होम जैसे मैं अपने घर में रखता हूँ Yes. वैसे बिल्कुल Yes. दैट्स द सेम So if you say today my pet wants to eat boiled eggs with soup, so you will get boiled eggs with soup. ओके That's so luxury. that is a customized also Yes. कि आप क्या देना चाहते हो Yes, we will get that absolutely. and Rachita what this cost us if suppose I am a pet owner and I approach Pooch A Kings basic chicken rice meal costs us from $250 per day per dog. per dog Yeah. and what is the stay rent for that one day See, as of now, we are charging 1,000 per night. okay for 10 hours Yeah, overnight. Overnight. Okay. So 12 check-in, just like a hotel, same and 12 check-out the next day. next day nice and you will get how many meals and वो पूरा उसमें क्या schedule रहता है I wanted to know because So we have 2 meals for an adult dog. 2 meals are more than enough for an adult dog. अगर छोटा बच्चा आता है तो we increase the meals. ठीक So we give 3 to 4 meals if the dog is like 6 months या उससे कम छोटा है थोड़ा, because the meals have to be then in smaller portions but in more numbers. So that is there. They play, they socialize. My staff teaches them hello करो. अच्छा पूरा training engage they keep engage करते रहते हैं. हाँ, बिस्किट्स दे देते हैं बीच बीच में कि चलो हेलो करो फिर बिस्किट्स मिलेंगे. So all that happens. There are pets who are reactive to other dogs. So I would suggest हमारे I wanted इंडिया to में ask this also. कैनल्स का बड़ा ही एक फोबिया है कि हमारा डॉग कैनल में नहीं रहेगा. बट आई पर्सनली फील कैनल्स आर अ सेफ स्पेस फॉर मैनी डॉग्स. बहुत डॉग्स उनको एक सेफ स्पेस समझते हैं. My dogs have never stayed in kennels, but when I left them in my own boarding, I wanted to leave them and see how they react. I wanted to test on them. They loved the kennels, surprisingly. They wanted to go back inside the kennels. So kennels are not bad. That's what we also need to understand. Outside India, it's a very in thing. People love kennels, the idea of kennels, because every dog is different. Correct. ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉग सब डॉग्स के साथ फ्रेंडली है तो किसी और का डॉग भी सब डॉग्स के साथ फ्रेंडली होगा. तो क्या उसको बोर्डिंग का हक नहीं है? उसको उसके पेरेंट्स नहीं छोड़ के कहीं जा सकते. तो अगर किसी बोर्डिंग में कैनल्स ऑफर नहीं हो रहे होंगे तो वो बच्चा कहाँ रहेगा? सो आई ऑफर कैनल्स एज वेल. And when I say kennels, they are not really kennels. You can come and visit. You can see it's very spacious. The dog can literally move around. आराम से. What I've seen is कि kennel में भी उनका bed होता है. What अभी recently I went to a daycare center and मैंने देखा उस पे bed था तो I was very surprised कि. So we keep a bed yeah. and then there is a bowl and we have a small window जिसमें से bowl अंदर जाता है. Correct. और फिर हम उसको बंद कर देते हैं विंडो को और उसी में से जब वो खाना खा लेता है तो विंडो से बोल को बाहर निकाल लेते हैं.
That's एंड how रचिता, सो जैसे यू आर अ रेस्क्यूअर एंड आपने काफ़ी सारे डॉग्स को रेस्क्यू करा है. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ऑल्सो. आप काफ़ी सारे पोस्ट डालते हो. तो ये जो डॉग्स रेस्क्यू करके आप लाते हो उनका कैसे आप क्या करते हो? जैसे तो मतलब हाउ यू कीप देम, देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस यू डू? See, our first and foremost step, the day we rescue, is to take them to the vet. ओके. That's our first step. पहले उसका थरो चेकअप कराते हैं वेट से, उसी दिन. We don't delay it. So you take it to a private hospital or Yes, private. private hospital? That Private. is your own cost. Yes, our own cost. Okay. They go to a private clinic. उनका थरो चेकअप होता है, उसी दिन ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट शाम तक आ जाती है. शाम को जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बेसिस पे वी गिव देम अ ब्रेवेक्टो और अ सिम्पारिका. इफ टिक फीवर इज नॉट डिटेक्टेड, इफ एवरीथिंग इज ओके, then we give them a Brevecto, which is very important when they are in a boarding, because tick infestation होने का डर होता है. Chances होते हैं, correct. So it's very important when a new dog is coming in, he is not infested with ticks. Once he's settled a bit, in few days, we speak to the vet. If everything is okay, reports are okay, can we sterilize him? That is also very important step, because if he gets adopted, I am not sure about the adopter, but I'm sure about myself that I am handing over the dog neutered to someone, so that breeding का process ही minus हो जाए life से. So this is a standard process. बाकी हम वहाँ पे उनको socialize करने की बहुत कोशिश करते हैं. कुछ डॉग्स हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं. जैसे हमारे पास एक हस्की आया हुआ है जो अभी तक भी डॉग से सोशलाइज नहीं हुआ है. उसको गर्मी में किसी ने सेक्टर 28 नोएडा में छोड़ दिया था. आप इतने सारे डॉग्स को रेस्क्यू करते हो तो ये स्पेस इज़ लिमिटेड, तो आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक अडॉप्टिंग के लिए आपने बताया लोग नहीं आते हैं, तो मतलब हाउ यू मैनेज? ये तो स्पेस इज़ लिमिटेड और आप रेस्क्यू कर रहे हो. इट्स अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन, बट डेंजरस इसलिए है क्योंकि आई वरी अबाउट इट, दैट देयर विल अ टाइम विल कम व्हेन आई हैव टू से नो टू रेस्क्यूज, because we don't have space. You're right. We have already reached that point. Now I have to say no, because we don't have space. So I am now pushing adoptions. ये बच्चे अडॉप्ट होंगे तो और बच्चों को मैं ले पाऊंगी. So I am like literally pushing adoptions right now. आप मुझे एक बार बता रहे थे दैट ऑन द कॉल दैट यूएस और बाहर एक डिफरेंट कल्चर फॉलो होता है, डिफरेंट रूल्स फॉलो होते हैं. कैन यू एक्सप्लेन अस? Yes, in outside India, it's a standard. An abandoned dog which is not adopted, they put them to sleep. Okay. Yes, but India we don't follow this. India it's a no, absolutely no. US Europe में ये सब normal है. अच्छा, सो एक महीने में अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता है they put them to sleep. Yes. Okay. It's a very sad thing. It's a very sad thing. Yes. Yes. I was not aware of this. Yeah. So if we are still, human. Some time back, I was facing the same situation in my house. So I have a limited space and I have a German Shepherd. Same issue. I'm traveling to office, manage नहीं हो रहा, and I was looking for adoption. तो कैसे I should reach out people, या कैसे मैं इसको adopt कराऊँ, या what should I do next? If you are saying कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूँ. How many years, if I may ask? 2 years. See, 2 years is a good enough time. And he's already attached to you. I would rather suggest, if it's just the exercise time that you want to give him and you're not able to, figure out something. Maybe get a walker. Correct, yes. Correct. Because after a year, I would not advise to give away a dog. Because they do get attached to you, especially breeds like GSDs. They are very emotional breeds. While they are huge, you will they aggressive हैं, ये हैं, वो हैं. नहीं, they are very emotional breeds. आप shelters में जाके देखो, they don't survive when they are abandoned. Not German much. Shepherds. Yeah, they don't survive much when they are abandoned, because they are one master dogs. German Shepherds are yes. one master. वो एक से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि जब वो उससे अलग होते हैं ना, तो वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं. तो दे गिव अप ऑन लाइफ. ओके. दे टोटली गिव अप ऑन लाइफ. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट, बिफोर अबैंडनिंग या गिविंग अप ऑन अ डॉग, ऑलवेज फिगर आउट सॉल्यूशंस. देयर इज ऑलवेज अ वे. इतने अबैंडनमेंट्स होते हैं और बहुत सिली रीजंस पे होते हैं. रीलोकेशन,
illness. So this is the reason they are abandoning. हम रिलोकेट हो रहे हैं, बीमार हो गया है, इलाज नहीं कराना, लोग पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, तो आप पेट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट करोगे लोगों से? बट रचिता, जैसे व्हाट आई हैव सीन कि मेडिकेयर बहुत एक्सपेंसिव हो रही है. इज दिस अ There is रीजन? insurance available, go for it. हम Pet अपने लिए- insurance? Yes. Bajaj offers insurance. Okay. I have insurance for all my pets. Oh, you have taken insurance for your pet? Yes. And how much you have to pay and what services they See, pay? insurance is expensive, Hmm. but I think it's worth it. Okay. You must take it. Everyone should take it. हम लोग अपने लिए नहीं लेते हैं, अपने लिए भी तो लेते हैं ना? बिल्कुल लेते हैं. मुझे नहीं आइडिया था दैट पेट में भी इंश्योरेंस Yes. है. Okay. Bajaj offers very good insurance for pets. I think all pet And parents should if go for it. he's face any medical issues, you can go to hospitals and get it Yes. treated. Yes. Nice. हाँ, this is a good option. Yes. अगर medicines and Medicare is a problem, then you can opt for insurance. Right. So रचिता, अभी recently एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था. A person got infected with rabies and उसका 2 घंटे में, I think you have seen that Yes. video. It got viral and normally we were discussing with friends. तो rabies के symptoms कैसे पता चलते हैं? See, rabies is a deadly disease. We all know it. It is caused by a bite or a saliva of a infected animal. Now, all dogs don't have rabies. Okay. We have to understand this. All community dogs don't have rabies. ऐसा नहीं है. कोई infected dog है, उसके symptoms क्या होंगे? उसको पानी से डर लगता होगा उस dog को. ठीक है. आप उस पर पानी फेंक के देखोगे, पानी से डर जाएगा तो उसको रेबीज है. Okay. ठीक है. वो चीज़ों को अपने आसपास ऐसे 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 बाइट कर रहा होगा, तो उसको रेबीज के सिम्टम्स हो सकते हैं. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज यू कॉल SPCA. इफ यू आर इन नोएडा, यू कॉल SPCA. ठीक है. नोएडा का मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट. दिल्ली में आई एम श्योर MCD होगी, MCD देखता है. Correct. MCD देखती होगी. तो आप उनको कॉल करिए, वो उसको ले जाएंगे, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, और उसके बाद उसका जो भी उसका ट्रीटमेंट है या जो भी उनका जो भी प्रोसेस होता होगा वो उसे फॉलो करेंगे अकॉर्डिंगली. तो आप ये प्रोसेस फॉलो करिए. इफ़ यू आर बिटन बाय एनी डॉग, So rabies scratch से होता है, if some dog scratch you, या फिर सिर्फ bite से हो सकता है? स्क्रैच से भी हो सकता है, बाइट से भी हो सकता है. Okay. अगर उसका सलाइवा वहाँ लग गया है आपके स्क्रैच पे, तो उससे भी हो सकता तो है. उससे भी हो सकता है. Got it. I would always say precautionary. Always take an anti-rabies shot. Always. After a scratch or A anything. scratch, after a scratch or a bite, what is the harm? Just go Correct. and take an anti-rabies. There's nothing to lose. But what if? There's always a what if, right? Correct. So, and we all know it's a deadly virus. So why not take it? अरे कुछ नहीं है ज़रा सा. No. I would recommend, please go ahead and take. I rescue so many dogs. कभी कभी वो जानबूझ के नहीं, डर के काट काट लेता लेते है. हैं. Correct. तो फिर क्या मैं उसको जाने दूँ? नहीं. I always take an anti-rabies shot. Always. मेरे को हर साल लेना पड़ता है. लेना पड़ता है. लेना ही So if पड़ता you have है. a pet और वो आपने उसको एंटी रेबीज शॉट दिया, उसके बाद भी should take a shot? मैं तो लेती हूँ, अच्छा. और मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लीजिए. अगर पेट डॉग है उसको शॉट है, उसके बाद भी should. उसके बाद भी Should लीजिए. take a- और घर में अगर आपके छोटा बच्चा है और आपके पेट है, तो आप अपने छोटे बच्चे को एक एंटी रेबीज का शॉट हर साल ज़रूर दिलाइए. ये भी मैं रेकमेंड करूँगी. आप पीडियाट्रिशियन से अपने मिलिए, उनको बताइए कि मेरे घर में एक पेट डॉग है और मेरा बच्चा उसके साथ खेलता रहता है, तो आपका पीडियाट्रिशियन अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को एक Shot. एंटी रेबीज का शॉट हर साल लगा देगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिकॉशन से बेटर कुछ नहीं होता है. इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस. रचिता, एक चीज़ मैंने अभी रिसेंटली देखा था, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा रीलोकेशन ऑफ डॉग शुरू हो गया था कि एक जगह से रीलोकेट करते. इज दिस लीगल? नो, इज नॉट लीगल. नॉट एट ऑल. सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आप किसी भी डॉग को उसकी जगह से रिलोकेट कर ही नहीं सकते. ओके. इट्स नॉट अलाउड. इवन आप वैक्सीनेशन के लिए या स्टरलाइजेशन के लिए भी उसे पिक कर रहे हैं, तो आफ्टर 3-4 डेज जब वो हील हो जाता है, तो आपको उसी जगह पे उसको लाके ड्रॉप करना पड़ेगा. ओके. और सो व्हाट आई हैव सीन इज कि बहुत सारे ऐसे डे केयर थे जहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे बंद थे. मतलब बल्क में दे हैव लॉक देम. बहुत सारे ऐसे सेंटर्स में देखे. तो ये इनको क्या फ़ायदा है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को रखने में? आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट
क्या हो रहा है कि RWAs स्ट्रीट डॉग्स से परेशान हैं क्योंकि आपको पता है ये एक फाइट चलती चली आ रही Correct. है। एक एनिमल लवर का ग्रुप है, एक नॉन एनिमल लवर का ग्रुप है। वैसे तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है एनिमल लवर नॉन एनिमल लवर, यू आर सिंपली ह्यूमंस। करेक्ट। आपको एक बेसिक को एग्जिस्टेंस रखना है हर अपने सोसाइटी में, लेकिन हमसे वो भी नहीं हो पाता है एज ह्यूमंस। RWAs are tying up with some boardings or shelters, giving them money कि आप डॉग्स उठवा लो, हम आपको मंथली इतना पैसा देंगे। शेल्टर्स का भी फायदा हो रहा है या बोर्डिंग्स का भी फायदा हो रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं फिक्स्ड, और RWAs का भी फायदा हो रहा है। और उनको लॉक करके रखते हैं पूरा, एंड दैट वाज वेरी अनहाइजीनिक। मैं देखा कंडीशन वाज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। इनका डे केयर का व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कीपिंग दीज डॉग्स? दिस इज द ओनली बेनिफिट, पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है एंड RWAs। सो रिसेंटली रचिता, एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ इन माय सोसाइटी। समबडी वाज ट्राइंग टू बीट अ डॉग जस्ट बिकॉज वो पता नहीं उसके आसपास बैठा था या देयर वाज सम इशू, एंड आई वाज जस्ट पासिंग बाय एंड आई स्टॉप्ड हिम। ही वाज सो एंग्री, ही शाउटेड एट मी एंड इज ट्राइंग टू बुली मी एट दैट टाइम, एंड आई सेड वन लाइन कि यार इस जगह पे सबका राइट है, ये कौन डिसाइड करेगा कि वो एक स्पेस पे सिर्फ मैं रह सकता हूँ, वो नहीं रह सकता। और अगर इतना ही तो सारे डॉग्स को मार दो, पूरे खत्म कर दो, आई विल नॉट फीड देम। बोला यू गाइस फीड देम बिकॉज ऑफ दिस, वो लोग यहाँ रहते हैं। मैंने बोला जिस दिन यहाँ से आप सब डॉग्स खत्म कर दो, आई एम ओके, आई विल नॉट फीड इट, बट जब तक वो यहाँ है मैं फीड करूंगा। सो आई हैव सीन दिस मेंटालिटी ऑफ पीपल कि दे डोंट वांट टू को एडजस्ट विद दीज डॉग्स। उनको चाहिए कि हमारे एरिया में होना ही नहीं चाहिए डॉग्स। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जिस दिन ये कम्युनिटी डॉग्स हट जाएंगे कंप्लीटली, अगर हट गए, अगर हाइपोथेटिकली लेट्स थिंक कि बिल्कुल हट गए, आपको पता है क्या होगा? जो फेरल डॉग्स हैं जंगल से जो आते हैं वो कब्जा कर लेंगे हमारे एरियाज में। Okay. और उनको तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे, उनको तो आप टेम भी नहीं कर पाओगे। आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा जीना, बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रीट डॉग्स दैट यू आर सेफ। आपके चोर पकड़े जाते हैं। Correct. आपके वो जो सुबह बच्चे आते हैं ना, वो जो झोला लेके आते हैं, वो जो पता है उनके ऊपर क्यों भौंकते हैं? ये इसीलिए भौंकते हैं क्योंकि वो चोरी करते हैं। we should be thankful to them and we should be thankful to feeders also. फीडर्स हमारा, आपको पता है मैक्सिमम वैक्सीनेशंस जो कम्युनिटी एनिमल्स के हुए हैं वो फीडर्स के थ्रू हुए हैं। Okay. फीडर्स आर नॉट योर एनिमीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फीडर्स आपका बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कम्युनिटी एनिमल्स को आप वैक्सीनेट करके दिखा दो ना, आप पकड़ के गोदी में उनको वैक्सीनेट करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे। हम खाना खिलाते हैं, वो मुझ पे विश्वास करता है, इसलिए मेरी गोदी में आ जाता है। करेक्ट। कहता है आप कर लो मेरे साथ जो करना है, तो वो मेरे से वैक्सीनेट भी हो जाता है, और मैं उसे गोदी में उठा के वैन में रख देती हूँ, वो स्टरलाइज भी हो जाता है। उसकी नसबंदी भी और हम ही करा रहे हैं, उसका वैक्सीनेशन भी हम ही करा रहे हैं, और आप लड़ भी हमसे ही रहे हो। दैट्स रॉन्ग ना। अच्छा, दूसरा साइड भी है इसका। कुछ डॉग्स हैं जो अग्रेसिव होते हैं, कुछ कम्युनिटी होते हैं। अब जैसे ह्यूमंस हैं, बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ऐसे कुछ डॉग्स भी होते हैं, बदमाश होते हैं, कुछ बच्चे बदमाश निकल जाते हैं। अब कोई है एक डॉग 20 में से जो लोगों को काट रहा है, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। उसमें क्या है, आप शेल्टर को कॉल करो, वो उस पर्टिकुलर डॉग को पिक करेगा, उसको 10 to 20 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेगा, उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है करेगा, उसके बाद उसको 20 डेज में अगर कोई उसमें सुधार दिखेगा तो उसको वापस उस जगह पे छोड़ देगा। देयर आर पीपल हु डोंट लेट दैट डॉग गेट पिक्ड, उसके ऊपर भी लड़ने आ जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, क्यों उठा रहे हो उस डॉग को, क्यों पिक कर रहे हो? बट वो तो सही है, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। नो, वो तो पिक करने दो ना उसको, इज व्हाट आई एम सेइंग। ही नीड हेल्प ना, ही नीड्स हेल्प आल्सो। और उसके चक्कर में, उस एक डॉग के चक्कर में जिसके लिए आप लड़ रहे हो, उसके चक्कर में बाकी भी तो खराब Correct. उसमें आ रहे हैं ना लाइट में। करेक्ट। तो एक बच्चे के चक्कर में आप सारे बच्चों को क्यों फंसाना चाह रहे हो? हाँ, दोनों तरफ से आई थिंक यस, दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये मैंने रियलाइज नहीं करा। हाँ, सो आई वुड से यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड। डोंट बी ईगो क्लैश मत लाओ, नहीं उठने देंगे, वो मत लाओ, दैट इज रॉन्ग। जहाँ सही है, आप एक बेसिक वो प्लेटफॉर्म रखो कि यार आपकी भी हो जाए, मेरी भी हो जाए।
Correct. आप एक जनरल वो रखो। आप मेरा सोशल मीडिया देखना, मैं इतने साल से फीडिंग कर रही हूँ, मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, किसी से नहीं हुई। आप इतना डालते भी नहीं हो, आई हैव सीन बहुत, जैसे आजकल तो आप ब्रीडर्स ये टेक केयर्स पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं गया, मैंने उसको पिक करा, मैंने उसको स्टरलाइज कराया। मैं कैसे डालूं? या तो मैं उसको गोदी में उठा लूं या मैं वीडियो बना लूं। Correct. मेरी कोई टीम नहीं है। या मैं खुद उठा के उसको बेचारे को गाड़ी में रख के, जिस वक्त वो बच्चे को चोट लगी है, मैं वीडियो बना लूं या मैं उसको डॉक्टर के पास पहुंचा लूं। तो ये भी एक है नया ट्रेंड कि वो वीडियो बना बना के खूब डालो और हीरो बन जाओ, और ऐसे लोग चल भी रहे हैं। एक मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा कि लोग स्टार्ट करते हैं फीडिंग डॉग्स एंड दे ट्राई टू टेक मनी फ्रॉम अदर पीपल एंड धीरे धीरे वो बंद कर देते हैं, पर उनका वो फ्लो ऑफ मनी चलता रहता है या फिर वो बहुत ज़्यादा मिसमैच रहता है जो एक्चुअल में वो कर रहे हैं और जो वो लोगों से ले रहे हैं। सो हाउ यू सी दिस एंड लाइक सपोज अगर मुझे डोनेट करना है, मेरे पास टाइम नहीं है एंड आई वॉन्ट टू लुक फॉर अ जेन्युइन पीपल लाइक यू जो एक्चुअल में डॉग्स के लिए करना चाहते हैं, तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? यार मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया पे मत जाओ। ओके, डोंट फॉलो दैट सोशल मीडिया के अरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज़ मिल रहे हैं। एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट राइट एंड ट्रू। करेक्ट। यू गो एंड सी देयर ग्राउंड वर्क। आप उनका शेल्टर देखो, उनका ग्राउंड वर्क देखो। मैंने तो बताया ना, मैंने एनजीओ शुरू करी थी और मैंने अपनी डायरेक्टरशिप हटा दी एनजीओ से बिकॉज मुझे ग्राउंड वर्क करना था। मैंने अपने जो और फ्रेंड्स थे उनको डायरेक्टर बना दिया कि आप लोग चलाओ इस एनजीओ को, आई विल डू द ग्राउंड वर्क बिकॉज मेरा मन वहाँ है। करेक्ट। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आई कंटिन्यू टू डू माई कॉर्पोरेट जॉब सो दैट आई कैन सपोर्ट माई एनजीओ। आप एनजीओ इसलिए खोल रहे हो कि आप इससे पैसा कमाओगे, उस दिन आप गलत हो। एनजीओ कैन नॉट बी द माध्यम टू फॉर योर अर्निंग्स। बट लोग इसी सोच से खोलते हैं, इस सोच से खोलते हैं, तभी वो गलत करना शुरू करते हैं। एंड माई एनजीओ कैन नॉट बी माई सोर्स ऑफ अर्निंग। माई सोर्स ऑफ अर्निंग इज माई जॉब। वो तो वहाँ तो मेरा प्यार बसता है, वहाँ तो मेरा मन बसता है, मेरे बच्चों के लिए है वो। तो वहाँ से कैसे मैं पैसा कमा सकती हूँ? वहाँ तो यहाँ से जाएगा। दैट शुड बी द आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल था, बहुत नई नई चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी एंड आई एम श्योर आप लोग भी कुछ बहुत नया सीख के जाएंगे इस पॉडकास्ट से। अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट में कुछ और चीज़ें थी जो आपको सीखनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेगा। हम लोग एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम और कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे उनके साथ।